दोस्तों, बैलेंसिंग के पहले लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। हम बैलेंसिंग क्या है और क्यों ज़रूरी है उसके बारे में हम समझेंगे। When any massive body having mass moves with acceleration, it experiences inertia force। कोई भी पदार्थ जिसका द्रव्यमान है, मास है, वो एक्सेलरेशन से मोशन करता है तब वो इनर्शिया फोर्स फील करता है। एंड ये जो इनर्शिया फोर्स है वही अनबैलेंस फोर्स है। बोथ रोटेटिंग मास एज वेल एज रेसिप्रोकेटिंग मास आर एक्सपीरियंसिंग inertia force. Even rotating mass is moving with constant angular velocity. Its direction is continuously get changed, which is tangentially to the circular path. So it performs an accelerative motion and hence it experiences inertia. अब हम रोटेटिंग मास को लेके बात करेंगे कि हाउ अनबैलेंस इज देयर इन रोटेटिंग मास। When a body rotates, as shown in this figure, suppose a mass is at particular distance, radial distance r, is rotating at speed of omega, then what happens? It experiences a centripetal acceleration. अभी हमने बात किया कि जब रोटेशनल मोशन होता है तो एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद भी उसका एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। वो रेडियली टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। सो दैट acceleration is called centripetal acceleration. And according to second law of Newton, when there is a acceleration, F is equal to mass into acceleration, so it must experience the force, and that force is called centripetal force. और उसका मैग्नीट्यूड होता है FCP is equal to mass into acceleration, that is r omega square, और उसका डायरेक्शन होता है रेडियली इनवर्ड टुवर्ड द सेंटर, दैट इज FCP इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है इन 2 डायमेंशनल डायग्राम। When this body rotates with speed, constant speed omega, it experiences the centripetal force FCP is equal to mr omega square, and it directed radially inward toward the center. Now, according to third law of Newton, forces are always in couple, equal and in opposite direction. So this body at the same time experiences equal force in opposite direction, that is called centrifugal force. It is called centrifugal force, and it acts radially outward, having same magnitude, mass into acceleration mr omega square, and it has been shown over here also radially outward. Now centripetal force FCP is responsible for centripetal acceleration, but the centrifugal force is an additional force
and it is inertia force. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इनर्शिया फोर्स है और वो अनबैलेंस्ड फोर्स है, एंड दिस इज रिक्वायर्ड टू बी बैलेंस्ड. अगर रियल सिस्टम में क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल ऑफ ए रोटेटिंग डिस्क. मान लो कि हमारे पास एक रोटेटिंग डिस्क है एज शोन इन दिस फिगर. हम एज्यूम करते हैं कि उसका मटेरियल है वो होमोजीनियस है, वो मटेरियल आइसोट्रॉपिक भी है, एंड जो प्लेट है, जो डिस्क है, उसका थिकनेस यूनिफॉर्म है. दूसरा, हम एज्यूम करते हैं कि उसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो पूरा मास उसका कॉन्सेंट्रेटेड है, वो सेम है. सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस? So this has been shown here in 2D diagram. So for that, assume a small mass dm at radial distance from center is equal to dr, and when the disk is rotating at the constant angular speed omega, this small mass experiences unbalanced force, inertia force, that is equal to dm into dr omega square, दैट इज रेडियली आउटवर्ड. बट यहाँ हमने एज्यूम किया है कि डिस्क का मटेरियल होमोजीनियस है, आइसोट्रॉपिक है, यूनिफॉर्म थिकनेस भी है. तो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही अमाउंट का मास dm at same radius at dr and which is also rotating at the same speed omega will experience the centrifugal force, inertia force, dm इंटू डी आर इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो ये दो जो मास है वो उसकी वजह से इंड्यूस होने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को कैंसल कर देता है, एंड दिस हैपन्स फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल इन द एंटायर बॉडी ऑफ द डिस्क. पूरी डिस्क में कहीं भी मास एज्यूम कर लो तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस करने वाला दूसरा पार्टिकल होगा. So if this condition is satisfied, then we can say the total force acting, centrifugal force acting will be 0, and we can say it is a balanced system. लेकिन in actual system these assumptions are not there exactly. Many a times we found material are non-homogeneous and non-isotropic, as well as the thickness may not be uniform, as well as there can be manufacturing error, then can be assembling error, and hence the condition as we discussed above ऐसा नहीं होगा. Then what will happen in this case? Suppose a system is there where the assumptions are not justified. तो उस वक्त क्या होगा कि सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द सिस्टम, हम यहाँ दोबारा वही डिस्क का एग्जांपल लेते हैं, इज एट हियर एट दिस पॉइंट, लेट अस से O, एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एंटायर मास is concentrated little away at eccentricity E from the center of rotations. Means the center of rotation and center of gravity are not coinciding. They are at some distance, they are at offset, and that distance is, let us say, is E. And the disk is now rotating at the speed of omega, that is constant angular velocity. Then what will happen? This entire mass which is concentrated at this point at distance E will experience a centrifugal force, and that is nothing but unbalanced force, or we can say inertia force, and that amount will be unbalanced force is equal to mass into eccentricity E into omega square. And this kind of condition is very common in many rotating systems. We can say as example turbine rotors,
there can be this kind of condition in engine crankshafts, rotary compressor और centrifugal pumps में भी ऐसा सिचुएशन आ सकता है। वो कोई भी रोटेशनल सिस्टम हम कंसिडर करें उसमें सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशन में अराइज एंड देयर विल बी ए अनबैलेंस्ड फोर्स इनर्शिया फोर्स। नाउ अनबैलेंस फोर्स एक बार होता है तो देन इट इज़ ए टाइम डिपेंडेंट, उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है इन 360 डिग्री डायरेक्शन। The frequency of the unbalanced force will be equal to the rotational speed of the disk of the system. Once a unbalance exists, so it will cause number of other things. Unbalance की वजह से, that is because of this inertia force, there will be wear and tear in the system. The system will feel vibration. अनबैलेंस फोर्स की वजह से वाइब्रेशन आएगा एंड दैट कॉजेज ए फटीग स्ट्रेसिस एंड फाइनली मे कॉज इन टू फटीग फेलियर ऑफ द सिस्टम। ऐसा भी हो सकता है कि वाइब्रेशन होने की वजह से फॉल्टी ऑपरेशन हो जाए, गलत ऑपरेशन सिस्टम में हो, वाइब्रेशन की वजह से अनवांटेड नॉइस जनरेट होता है और वाइब्रेशन एज वेल एज नॉइस की वजह से ह्यूमन काइंड डिस्कम्फर्ट फील करता है और मशीन का परफॉर्मेंस भी खराब हो सकता है। सो बहुत सारे रीज़न है कि जिसकी वजह से अनबैलेंस शुड बी अवॉइडेड। अनबैलेंस को निकालना, दूर करना एक ज़रूरी बात बन जाती है। नाउ what should be done to remove the unbalance? So we can do it is by मिनिमाइज और एलिमिनेट बाय बैलेंसिंग। अनबैलेंस फोर्स को दूर करना है तो एक ही रास्ता है कि हम अनबैलेंस फोर्स को आइदर मिनिमाइज कर सके या कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं। सो कंप्लीटली एलिमिनेशन इज लिटल इम्पॉसिबल टास्क, सो वी ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज द अनबैलेंस्ड फोर्स। एंड इफ वी टॉक अबाउट द मेथड्स कि अनबैलेंस फोर्स को कैसे दूर किया जा सकता है, सिस्टम को कैसे बैलेंस किया जाता है, देन देर आर टू अप्रोचेस कॉमनली। वन इज एडिशन और सेकेंड इज डिलीशन ऑफ द मासेस। हम ज़रूरत है वहाँ पे मास ऐड कर सकते हैं या मास को डिलीट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो अनबैलेंस फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं एंड फाइनली वी गेट सिस्टम बैलेंस्ड। और मास को जो रखना है इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड एट प्रॉपर लोकेशन, एट प्रॉपर अमाउंट ऑफ मास, प्रॉपर रेडियल डिस्टेंस एज वेल एज प्रॉपर एंगुलर लोकेशन ऑफ द पार्ट्स। सो ये बात हुई बैलेंसिंग क्या है, अनबैलेंस क्या है और उस बैलेंसिंग क्यों जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, अगले लेक्चर में हम स्टैटिक बैलेंस के लिए बात करेंगे। ये लेक्चर में अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।